Dear students, today we are going to see question number 17 of the problem set 3. This is the fourth part of the videos of circle chapter for problem set. So you can see on the board that question 17 is already there, and one circle is there is a center, then EF is parallel to GH, and then two chords are given. So they have given that prove this chord is congruent to this chord EG congruent to FH. दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी आर्क्स कॉन्ग्रुएंट होती है सेम सर्कल में, और उन आर्क्स को EG आर्क और FH आर्क को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास ये कॉर्नर का एंगल और ये कॉर्नर का एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. मतलब EFG FGH ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई हो जाएगा. तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास गिवन में है कि ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिया हुआ है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे. आप टेक्स्ट बुक में कॉपी कर सकते हो. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. So you can see here there is a diagram. Prove congruent, not solution, proof. First, join GF, drop GF, same. EF parallel to GH given. Therefore, these two triangles congruent. Why? Alternate angle test. Equation 1. EFG, the angle, the measure angle EFG is half of this arc. Inscribed angle theorem. Okay, that is equation 2. Similarly, FGH is half of this inscribed angle theorem. Okay, so from 1 to 3 लेफ्ट साइड की चीजें सेम हो गई. ठीक है, EFG FGH यहाँ पे दोनों एंगल सेम था, तो ये और ये सेम हो गया. तो जब इनका लेफ्ट पार्ट इक्वल टू के लेफ्ट पार्ट में सब सेम हो गया, तो राइट का भी सेम होगा. तो सेम का मतलब है दिस इक्वल टू दिस. मैंने लिखा फ्रॉम 1 to 3 दिस इक्वल टू दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट. दोनों साइड में हाफ हाफ है तो कैंसिल. तो मिला मेजर आर्क EG कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क FH. आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गए. ओके, आर्क उनके कॉन्ग्रुएंट हो गए. इस वजह से कॉर्ड EG और कॉर्ड FH कॉन्ग्रुएंट हो गए. क्यों? करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, ये उस आर्क के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स है, इस वजह से वो कॉन्ग्रुएंट हो गए. दैट्स इट. Dear students, you can see on the board question number 19. Question 18 is reduced from the portion. So we are doing question 19. It says that prove EA congruent to AB. Diagram में देखते हैं. EA congruent to AB. ये दोनों को congruent करने के लिए अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द बिगर सर्कल सेंटर to the chord EB bisects the chord, ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए
हम ये पार्ट को और ये पार्ट को इक्वल बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स प्रूव कि ये वाला परपेंडिकुलर है। कैसे, चलो करते हैं। बहुत ही छोटा और बबलू क्वेश्चन है, वेरी इजी। फर्स्ट वी हैव टू जॉइन दिस पार्ट। ओके, सर्कल, larger circle and smaller circle touch each other internally। अंदर की तरफ से हम लोग टच कर रहे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई है। Therefore, by theorem of touching circle, by theorem of touching circle, ECD ED is a diameter. Reason ECD, they are collinear. By theorem of touching circle, these points are collinear. Therefore, ED is diameter. अगर ये diameter है, तो एक diameter सेमी सर्कल बना रहा है, आधा सर्कल। तो सेमी सर्कल always inscribe 90 degree on the center, on the circle. Therefore, EAD equals to 90 degree. Okay, ये हो गया। अब इसी तरह EAD 90 है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। Therefore, AD is perpendicular to EB, but AD this is the center and DA is perpendicular, so it will, EB is the chord, but EB is chord of larger circle. Therefore, EA equals to AB. They are telling prove EA congruent to AB, that we have proved. Reason why these two are congruent, sorry, perpendicular from the center to the chord, bisect the chord. Perpendicular from the center to chord, bisect it. Perpendicular from the center to chord, bisect it. So prove हो गया, easy. Let's solve next question. Dear students, next question is question number 20. So question number 20, they have given one figure, one circle, and they said that AB is a diameter, CD is bisector. AB is diameter, CD is bisector of
दिस बड़ा एंगल ACB, CD एक बाइसेक्टर है जो ये बड़े एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब आधा आधा इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। फिर उसके बाद में दिया है प्रूफ AD इक्वल्स टू BD। आपके टेक्स्ट बुक के डायग्राम में ये ब्लू कलर में जितना भी बनाया है वो डायग्राम था, जिसमें से ये डॉटेड पार्ट जो है ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो जाता है। प्रूफ करने के लिए बोला है AD और BD, तो जिसके लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा AD और BD को, तो हमने उसको रेड कलर में ज्वाइन कर दिया है। तो प्रूफ जब ये करना है तो ज्वाइन कर दिया, इसलिए हम आगे लिखते हैं प्रूफ में ड्रॉ AD और BD। फिर उसके बाद में एंगल ACB इक्वल्स टू 90, ACB 90 डिग्री, ये गिवन है डायमीटर। सो डायमीटर सर्कल पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो उसको बोलेंगे एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेमी सर्कल, एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेमी सर्कल। इंस्क्राइब्ड का स्पेलिंग लिख देता हूं, इक्वेशन 1। तो जब ये पूरा एंगल इसने हाफ ऑफ किया तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, राइट, दोनों इक्वल। 90 था, हाफ ऑफ किया तो 45 हो गया। सो इस एंगल ने जो आर्क बनाया है, ये जो एंगल है इसने आर्क बनाया है वो इसका डबल हो जाएगा, ये आर्क डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, मेजर आर्क DB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DCB, एंगल DCB। इसका वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 45, क्योंकि 45 यहाँ से मिला तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। रीजन क्या डालेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसका डालेंगे वैल्यू इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, फिर एंगल AOB, एंगल DOB, ये कितना होगा? तो बच्चे बोलेंगे हमें कैसे पता? जब ये यहां से लेके यहां तक आर्क 90 हो जाता है तो वो जो एंगल बनाएगा ये आर्क, एक एंगल तो यहां से बना था, वो और एक एंगल बना रहा है यहां से, ये दोनों रेडियस है, तो ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो होगा 90। कितना? 90। अब 90 का तो ऐसा कर्व नहीं होता है, 90 कैसे होता है? ऐसे। तो ये जो ट्रायंगल है ये इसका 90 डिग्री बन गया, राइट? क्यों बन गया? सेंट्रल एंगल और आर्क सेम होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा डेफिनेशन ऑफ आर्क। एक आर्क का मेजरमेंट उसके सेंट्रल एंगल के बराबर होता है। ये सेंट्रल एंगल 90 हो गया, पहले ये 90 था। अब अगर लेफ्ट साइड में 90 है, इस बड़े ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल 90 है और ये ट्रायंगल भी 90 होगा। क्यों? ये एंगल DOB 90, तो ये भी पार्ट AOD ये भी 90 होगा। क्यों? लीनियर पेयर, जिसकी वजह से ये दो ट्रायंगल ADB बड़े ट्रायंगल का ये बाइसेक्टर बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और तो ये दोनों पार्ट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो हमें प्रूव करना था। तो DOB इक्वल्स टू 90 लीनियर पेयर, ये वाला DOB सॉरी DOA
DOA इक्वल्स टू 90 लीनियर पेयर ऑफ DOB। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, और फिर उनकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गई जो हमें प्रूव करना था। सो this part and this part congruent, therefore these two segments are congruent, which we have to prove. Done. Dear students, next question is question number 21. 21 क्वेश्चन को दो मेथड से किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, मतलब ये एक ऐसा कॉर्ड दिया है, हम अगर OL को ऐसे एक्सटेंड कर दें सर्कल तक, तो ये दो कॉर्ड बन जाएंगे और एक दूसरे को कट करेंगे। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड को कैंसिल किया गया है बोर्ड की तरफ से, तो उस मेथड से हम इसको नहीं करेंगे, वहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो हम इसको करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। MN सेंटर इज O सेंटर है, सेंटर इज O, MN is a chord, OL is a distance, L is point on MN, बाकी सबका वैल्यू दिया है। MN 25, ML 9, वो छोटा पार्ट 9, ये पूरा 25, OL 5। ओके, तो अगर ये पूरा 25 है तो ये कितना होगा, ये 9 है, तो 25 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 16 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 16 हो जाएगा, ये याद रखना है। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ड्रॉ करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, ड्रॉ OX परपेंडिकुलर टू MN। इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। और ज्वाइन करना पड़ेगा ON को, क्यों, ये रेडियस है और उसके लिए हम ज्वाइन करेंगे, तभी ट्रायंगल का पार्ट ये बन सकता है, ठीक है। हमारे पास टोटल वैल्यू 25 है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये बाइसेक्टर को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, तो ये पार्ट हो जाएगा 12 और ये पूरा पार्ट हो जाएगा 12, यहां से इतना, ठीक है। ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। अब इस 12 में इतना जो 9 था, तो ये कितना हो गया 3, ठीक है। अब हमारे पास ये है, ये है, ये नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से ये मिल जाएगा। जैसे ये मिल जाएगा तो इन दोनों को यूज करके ये मिल जाएगा और वही हमें ढूंढना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ तक किया था कि ये पूरे का वैल्यू इक्वल है 12.5 12.5, जिसमें 9 पहले से दिया है, तो 12.5 में से 9 माइनस किया तो मिल गया 3 और यहाँ पे 12.5 लिख दिया। हमारे पास ये वैल्यू है, तो इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस लगाया तो हमें OL स्क्वायर इक्वल्स टू ये इक्वेशन मिला, वैल्यू डाली OX 4 मिला, ये OX 4 मिल गया। अब हमारे पास परपेंडिकुलर का वैल्यू है, इसका वैल्यू है, इस ट्रायंगल के अंदर ये ढूंढेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा, पाइथागोरस से। इन ट्रायंगल OXN
ओ एक्स अभी मिला 4 स्क्वायर प्लस एक्सन है 12.5 स्क्वायर जो रहेगा 60 प्लस 156.25। आप बोलोगे सर आपको कैसे मिला, उसका स्क्वायर करना है बस 125 इंटू 125 ऐसे आप करोगे तो आपको मिलेगा 156.25। ठीक है, ये 12.5 दो डिजिट के पहले पॉइंट है तो दो नंबर के पहले पॉइंट डाल दो तो मिल गया। तो ये रफ वर्क है। ठीक है, जो हो जाता है 0.25 6 plus 6 2 5 plus 1 6 6 plus 1 7 1 1 2। जस्ट अ सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक करेक्शन है। करेक्शन ये है कि 12.5 माइनस 9 3 नहीं 3.5 है। 3.5 तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। 3.5 का स्क्वायर तो 12.25 25 माइनस 12.25 तो जो हो जाएगा 25 माइनस 12 करेंगे तो 13 होता है। सो 13 माइनस 25 करेंगे तो 12.75 12.75 ये हमें OX स्क्वायर मिलता है। ठीक है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करेंगे। का स्क्वायर जो 12.75 का स्क्वायर हो जाता है OX स्क्वायर। OX क्या था, OX हमें मिला 12.75। ठीक है, हमें OX मिला था यहाँ पे 12.75। ये OX स्क्वायर है, हमने इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया। नॉर्मली हम पाइथागोरस में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लिया। क्यों, ये आगे चल के हमें यूज होने वाला है। तो देखिए xn का वैल्यू 12.5 xn ये वाला, तो इसका 12.5 सीधा सीधा लिख दिया। OX स्क्वायर अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में आंसर आता और वो सॉल्व करना इजी नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं किया, तो इसको एज इट इज लिख दो 12.75। इसका स्क्वायर किया तो इतना मिला, ये दोनों को प्लस कर दो। 156 बड़े नंबर को हमेशा ऊपर 12.75 प्लस करो 5 minus 5 5 plus 5 0 169 ON स्क्वायर 169 तो ON कितना होगा स्क्वायर रूट दैट इज 13। रीजन टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, ये रफ वर्क है। तो इस तरीके से ON मिल गया। उन्होंने ON ढूंढने बोला था क्या, उन्होंने बोला था फाइंड द रेडियस। तो हम फाइनली लिखेंगे देयरफॉर द रेडियस इज
13 centimeter. That's it. Dear students, next question is question number 22. 22 is cancelled from the board, and 24 I have marked homework, which is the last question of the problem set. Now we are going to do question number 23, which is very easy, where we have to prove SQ parallel to RP. SQ parallel to RP. डायग्राम में देखेंगे तो RP ये है और SQ ये है, इन दोनों को पैरेलल बताना है। कोई भी लाइंस को पैरेलल बताने के लिए या तो अल्टरनेट, या तो करस्पॉन्डिंग, या तो इंटीरियर एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम उसको पैरेलल बता सकते हैं, या तो कोई क्वाड्रिलैटरल बन जाए, जैसे पैरेललोग्राम का कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो जाए। तो यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास एक ये सीकेंट है और एक ये सीकेंट है, और ये इस तरह के सेगमेंट्स बनाए गए हैं, कॉर्ड्स हैं। तो बीच में हम एक और ड्रॉ कर लेंगे MN, ताकि उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों सर्कल्स का वो टच कर दे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि SMNQ ये सर्कल के 4 पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर हैं, इस वजह से ये चारों भी क्वाड्रिलैटरल जो है सर्कल का वो साइक्लिक है। उसी तरह ये छोटा वाला भी MRPN जो पॉइंट्स हैं वो साइक्लिक पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलैटरल MRPN के। तो इसी के बेस पे चलो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के बेस पे हम प्रूफ करते हैं कि RP इज पैरेलल टू SQ। प्रूफ ड्रॉ MN, ठीक। ये देख के साइक्लिक लगता है सर्कल के ऊपर। MRPN ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, और ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल। जो फिगर है उसके बाहर का एंगल है, इस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये एंगल एक्सटीरियर हो गया। तो इन दोनों बातों से, ये साइक्लिक फिगर और ये एक्सटीरियर एंगल से, इससे ये फायदा है कि हम इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल बता सकते हैं। वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी है। Therefore, angle MNQ congruent to angle MRP। यहाँ पे लिखेंगे corollary of cyclic quadrilateral theorem। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 नाम दे दो। इसी तरीके से जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में। नाउ क्वाड्रिलैटरल MSQN इज साइक्लिक। ये साइक्लिक है, और साइक्लिक होने की वजह से ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होता है। opposite angles of
cyclic quadrilateral. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. इस प्रॉपर्टी की वजह से ये 180 हो गया, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, ठीक है। अब हम ये 1 और 2 को देखेंगे तो MNQ MRP के बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, MNQ, therefore MRP, MNQ के जगह पे मैं MRP लिखूंगा क्योंकि ये दोनों सेम है। MRP प्लस मेजर एंगल MSQ, ठीक है, इक्वल्स टू 180 फ्रॉम 1 and 2, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका नाम चेंज करूंगा, मतलब है वही चीज लेकिन अलग तरीके से लिखूंगा। MRP को मैं SRP लिख सकता हूं क्योंकि उसी लाइन पे है। SRP congruent to plus MSQ। MSQ क्या है, MSQ इसको मैं लिख सकता हूं RSQ, या तो रीजन लिख दूंगा R-M-S, ठीक है। ये क्वालिनियर है जिसकी वजह से हम इस तरह नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों प्लस होके 180 हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लस होके 180 हो रहे हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ये इक्वेशन 3 ले लो। Therefore RP parallel to SQ, ये हो गया RP parallel to SQ क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है और दोनों मिलके 180 हो रहा है। From 3 and interior angle theorem of parallel lines, ये दो रीजन, एक तो यहाँ से ये स्टेप समझ में आएगा कि 180 कैसे हुआ और फिर इसकी वजह से ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया और ये चैप्टर ओवर होता है। सर्कल चैप्टर जो बहुत लेंथी चैप्टर था उसमें से एक एक्सरसाइज पूरा का पूरा गायब कर दिया, टेंजेंट सेगमेंट वाला थ्योरम, कॉर्ड्स, एक्सटीरियर इंटीरियर डिवीजन, वो सब निकाल दिया, जिसकी वजह से पोर्शन कम हो गया और कुछ पोर्शन जो रिड्यूस किया गया और कुछ थ्योरम्स रिड्यूस किए गए, जिसकी वजह से और हल्का हो गया स्टूडेंट का माइंड। पोर्शन कम होने की वजह से हम इसको, नहीं तो सर्कल चैप्टर खत्म करने में करीबन, अगर वीडियो की बात की जाए तो करीबन 15 वीडियोस लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। 5-5 मिनट का या 6 मिनट का एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो। So thank you very much for your cooperation. I hope you have understood whatever I have taught. I tried not the best, but I tried good, well. Whatever was possible, I did it. So in case of any kind of confusion, any kind of doubt, you can ask me. You can message me, WhatsApp me, and don't keep your doubts with yourself. Reveal it out and get it cleared. Apart from that, lockdown is still going on and we don't know what exactly is going to happen. There is no announcement from the government that from when the school is going to start, from when the coaching classes will be started. So as far as videos,
as far as WhatsApp, as far as messages are concerned, as far as calling, oral, online test, online coaching, whatever is possible, we both, as a student and teacher, we both are doing our best. So hopefully we are confident and will be ready for the exam. Whatever portion they have decided, we are preparing ourselves in that manner, and let's see what God decides for us. But we are prepared, we are ready, we are preparing ourselves, and that is what human can do. इंसान वही कर सकता है जो उसके हाथ में है. हमारे हाथ में हमारा काम है, हम कर रहे हैं, बाकी जो सामने आएगा उसको फेस कर लेंगे. ठीक है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स. Thank you very much for your cooperation. Keep practicing. God bless you.